When Guru Sahib says एक ओंकार सतनाम, गुरु प्रसाद, वाहिगुरु, सतनाम का मतलब होता है रियलिटी, गॉड, द ट्रूथ। एक ओंकार ही रियलिटी है, ट्रूथ है, सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। शाश्वत और नित्य में थोड़ा सा अंतर है। नित्य मतलब हमेशा से है, विच मीन्स आज सच, जुगाद सच, है भी सच, होशी भी सच, शुरू से भी है, था, अब भी है, हमेशा रहेगा। दैट्स कॉल्ड सच। सच वो नहीं होता जो देखा मैंने बोल दिया मैं सच्चा हूं, नहीं। सच मीन्स जो हमेशा रहेगा। जो मैंने देखा और मैंने बोल दिया वो व्यवहारिक सत्य बोला जा सकता है उसको, नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। द एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन्स जो कि हमेशा था, जो कि है और जो कि रहेगा। सो एक ओंकार जो है सत्य है, भगवान है, मगर वो गुरु प्रसाद के रूप में ही मिल सकता है। क्यों, कैसे, जब वो है ही हमेशा, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? जब वो सच है, वो जब मेरे जन्म के टाइम पे भी था मेरे साथ, और मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगा, तो फिर वहां गुरु की रिक्वायरमेंट कहाँ रह गई? हरे राम, बिकॉज ही कैनॉट बी डिनाइड, ही इज ऑलवेज देयर। हरे राम। I often share with you all private conversation, communication with you. When I was 13, I saw God. Not really. I did not know that He is God. I just saw something which was otherworldly. And that means to say, before 13, He was not there. He was there, but at the 13 age, I got Tera, Tera. Tera बड़ी profound date है, Tera. 13 पे जब मेरे को 13 का भाव डेवलप हुआ होगा, अनअवेयर्स, आई मस्ट हैव सर्च्ड समथिंग विच आई वाज longing for all my till 13, and somehow by inscrutable grace he showed me his face. Now his face did not have any features. It was Nirankar. God is Ikumkar. God doesn't have features. So I had a glimpse of him for about, don't know how much time, because then time ceases, at that time. Time disappears. भगवान चीज ही ऐसी है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता, पता ही नहीं चलता वक्त का। हरे राम। हम आपस में ही कभी कभी बहुत, somebody very close to us, we meet him, टाइम का पता ही नहीं चलता, कैसे घंटों निकल जाते। So when you see God, the ultimate reality, I don't know how much time I saw him for. Well, thereafter, finished. Again, I did not know that he is God. I did not know that what should I call him. I did not give him any name. Neither I called him Ikumkar, nor I called him Nirankar. I just experienced something otherworldly. And I could never forget that otherworldly experience. Never forget that. But not that I was always remembering it. It was in the back of the mind, just like क्लास 10 में मेरे मामा ने मेरे को स्कूल में राजमा भेजे थे खाने के लिए, तो आज तक मुझे उस राजमा का टेस्ट ही नहीं भूला। Not that I'm always remembering that rajma. It just stayed with me. टेस्ट ऐसी चीज है, फ्रेग्रेंस भी ऐसी चीज है, और वो जो अदर वर्ल्डली अनुभूति है वो इनसे भी ज्यादा गहरी, भूलती नहीं है फिर कभी भी। सो फिर गुरु क्या क्या रोल? So when I met my guru or saw my guru from a distance,
the same thing happened again, which I seemingly had forgotten, but it was still in my mind. अभी भी मुझे कोई वैसे ही राजमा खिला दे जो बहुत स्वाद हो तो मुझे याद आ जाता है वो 10th क्लास में मम्मा ने भेजे थे, ऐसे ही थे, isn't it? So that kind of a thing it was. When I saw my guru, I had that same experience. He was not my guru. I just went to see a person because so many people go to him. So I thought, let me also go and see him. So I just saw him, and the same thing happened. Now I was not seeing features alone. I was seeing that which I had seen at the age of 13. Now I was 30, so maybe 17 years had passed. So, well, but I thought I mean, the kind of tricks which he does, he moves his hand and a diamond appears, and various other such things. He would make hospitals and huge social welfare projects. So that way, I thought it's all kind of, I mean, tricks to attract people. After all, whose money it is? Money is people's only. So people are fools. They're giving him money and he's making hospitals. So whose money it is? Yours only. So I thought it is all, so to say, fraud. When you see another person just like you and so many people getting attracted to him, you would say it's just a gimmick. It's a fraud. Somebody gave me a beautiful compliment the other day. I'm a very small man, but he gave me a very beautiful compliment. He said कि जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब आपको मिला था ना, if you don't mind, let me tell you what did I tell back home to anyone and everyone whom I met. I told everyone he is a fraud because you can't actually be like this. You are a fraud. Well, it's okay, wonderful. But then he said, now that we are meeting for last so many years, I know there was something. I was wrong. There was a possibility that there's a reality also in it. Well, great. So you call me a fraud or you call me whatever, it doesn't really matter. So, we are all from childhood trained to not take people at their face value. Do not take people at their face value. हर कदम सोच के आगे रखिए. दुनिया में बहुत चीटिंग है. एंड सो वी हैव बिकम सो केयरफुल कि अगर हमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे ना तो हम उसको फ्रॉड बोल के चले जाएंगे इधर उधर, कभी उसको मानेंगे नहीं. सो गुरु क्या करता है आपको? Something happens inside you and you start believing in him at face value. You start accepting कि सच ही बोल रहा होगा. उसके झूठ को भी आप सच मान जाते. मैं तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं. तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं. आंखों से तेरी सच सभी सब कुछ अभी जान लूं. आंखों से कुछ दिख जाता है कि I mean, he seems to be real, but how can he be real? That state of, feeling happens inside you. कि ये हो नहीं सकता मगर लग तो रहा है कि सच है. So God or Guru is a sakar roop which gives you sort of a, initial feeling कि शायद भगवान ऐसा ही होता हो. और जब when I saw that so-called guru, he was not my guru, as I said, just another person. When I saw him, I fortunately was forced to take him at
फेस वैल्यू। मैंने वो जो बच बच के कदम आगे रखना चाहिए ये सब भूल गया। अपनी सोच विचार सब फेंक दी बाहर। लगा कि ये सच हो सकता है, मुझे इसको सच ही मानना है, मुझे झूठ नहीं मानना इसको। होने दो फ्रॉड, जो कुछ भी है, बट मैं इसको सच। वैसे भी तो जिंदगी में हम ऐसे बन जाते हैं। देयर वॉज अ सर्वेंट ऑफ माइन, एवरीबडी टोल्ड मी, जब मैं 2-3 दिन उसको रखा, बॉम्बे में था, सबने बताया that वो तो चोर है जिसको आपने रखा हुआ है। So I said, but I have already accepted her, I've already said yes, work for me. तो अब क्या करूं? मान लो कि सब ठीक है, मैंने उसको घर की चाबियां दे दी। मैं बोला, आई मीन आई एम एट वर्क, वो हाउस बिलोंग्स टू यू। अभी क्या ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? वैसे थोड़ी सी तो विजडम होती है। पैसे वैसे ज्यादा तो हमारे वो कार्ड के अंदर ही होते हैं। घर में क्या, 500, 1000, 2000 रुपये हो गया, चलो ले भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? दूध पड़ा है, पनीर पड़ा है, वो क्यों नहीं खाएगी? मैं ही क्यों जरूर खाऊंगा, वो भी खा ले। चलो अपने घर बच्चों को भी खिलाएगी, व्हाई नॉट, इट्स माई जॉब टू फीड हर चिल्ड्रन। तो क्या कर लेगी वो, क्या ले जाएगी मेरे घर से? सो यू बिकम लाइक दैट, हम वो इतना ज्यादा केयरफुल होना बंद कर देते हैं। तो हमको समझ आ जाता है कि जब कोई हमको वेल विशर बोलता है, हर वेल विशर बोलता है, जब भी हम घर से जाएं बाहर, माँ भी बोलेगी, सब बोलेंगे टेक केयर। टेक केयर का मतलब ये नहीं है कि तुम फूक फूक के कदम रखो। टेक केयर मतलब है प्यार करते रहा करो, अपने को भी सबको भी। लव एवरीथिंग एंड एवरीवन, बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। टेक केयर, उसी को आपने उल्टा समझ लिया ना। टेक केयर का मतलब खबरदार, नहीं खबरदार नहीं। टेक केयर मीन्स केयर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ एवरीवन एल्स, इजंट इट? जितना भी अपने हाथ में, एज ए डॉक्टर मैं सब कुछ अपनी दिल से करता हूँ, मगर इतना ही तो मेरे हाथ में है। इसके बियॉन्ड मैं किसी को बचा थोड़ा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? जो जैसा लिखा होता है वैसे ही होता है। मगर मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ कि जितना मुझे आता है उतना मैं उसके लिए कर दूं। और वो ही हर एक आदमी को करना चाहिए। सो रियलिटी हमको जब दिख भी जाएगी ना, तब भी बिना गुरु के हम उस रियलिटी को रियलिटी नहीं मानेंगे। तो वो जो मुझे 13 साल की उम्र पे एक ओंकार के दर्शन हुए थे, उसको अभी मुझे पता थोड़ा था कि एक ओंकार बोलते हैं। ना मुझे उसको कुछ भी निरंकार बोलते हैं या गॉड बोलते हैं या कुछ भी, ईश्वर अल्लाह कुछ भी बोल, ये तो नाम है। मगर मुझे एक अल्टीमेट रियलिटी के, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ के दर्शन हो गए थे एट द एज ऑफ 13, ग्लिम्प्स। एंड फॉर हाउ मच टाइम आई डोंट नो, बट वेल, वो तो जब गुरु मिला तभी तो पता चला कि हाँ, ये तो वही राजमा है जो एक बार मैंने पहले भी खाया। और अभी तो राजमा बनाने की तरीका भी सिखा दिया गया कि वो वही वाले राजमा रोज 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 हर वक्त कैसे बनाने। तो फिर गुरु से आपको नाम मिल गया, गुरु से आपको निरंकार मिल गया। सो खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। यूं किंकरी अनूप वाचे, जोगिया मतवारो रे, जोगी के मन मीठी लागे। क्या हुआ? खोजत खोजत, हम सारे खोज ही तो रहे हैं सब तरफ। पता नहीं क्या, पैसे में खोज रहे हैं, शोहरत में खोज रहे हैं, बच्चों में खोज रहे हैं, पर वो चीज मिलती नहीं है सबके पास ऑलरेडी, मगर मिलती नहीं। ऑलरेडी है। कोई नहीं कह रहा कि एक ओंकार कहीं जा सकता है। वो आज सच है, जुगाद सच है भी सच, वो सी भी सच, वो हर वक्त है। मगर कहेंगे हुक्म ना किया जाए,
हुक्मी होवणकार, हुक्मी होवण जी। पर हुक्म ना कहा जाए पे हुक्म है क्या, ये गुरु नानक साहब खुद ही बता रहे हैं कि कोई जान नहीं सकता कि हुक्म है क्या और है कौन। आई ऑफन से हुक्म मीन्स द पर्सन एज वेल एज हिज लॉ। उसको कोई जान नहीं सकता, मगर खुद ही पैराडॉक्स है। भाई कितना इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स कि गुरु साहब पहले बोल देते हैं जप हाथ सच जुगात सच है भी सच हो सी भी सच, और फिर कहते हैं कि मैं तो मेरे को नहीं पता हुक्म क्या। भाई खुद बता तो दिया और फिर ही कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता और कोई बता नहीं सकता। पहले बोला नहीं कि जप आज सच जुगात सच, उसको ही सारा दिन अल्टीमेट गोल समझ लो। जप सिर्फ मुंह से ही नहीं, दिल से। किसको? जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, हमेशा है, उसको अपना अल्टीमेट गोल समझ लो, जान लो, मान लो, गावो, सुनो, उसी के साथ ही उसमें रम जाओ। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण, उसमें ही डूब जाओ, खो जाओ। बोल दिया, हुक्म बता दिया, और अगली लाइन में बोलते हैं हुक्म ना किया जाए। बता तो दिया, अब क्या क्यों नहीं जाए, कह तो दिया, मगर कह ही दिया ना, समझ तो नहीं आया ना। और समझ कैसे आएगा? वो तो तभी आएगा व्हेन यू टेक somebody एट हिज फेस वैल्यू। जब आप फूक फूक के कदम रखना बंद कर देंगे एंड टेक लाइफ एज इट इज, मस्त हो जाएंगे। सब अपने ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है, कोई चोर नहीं है। सब लोग वैसे भी चोर ही हैं। तो आप भी तो चोर ही हैं, मैं भी तो चोर ही हूं, isn't it? मैं एक चोर, तू मेरी रानी, चोरी चोरी। वो बोलते हैं ना, गाना बहुत सुंदर है एक राजेश खन्ना का। एंड शी सेज नो नो नो, तुम चोर नहीं हो, तू मेरे राजा, मैं तेरी रानी। ब्यूटीफुल सॉन्ग। राजा रानी वॉज द मूवी, वेरी प्योर स्वीट मूवी। बच्चे होते हुए अच्छी लगती हैं पिक्चरें। अभी मैं नहीं देख पाता हूँ, टाइम नहीं है इतना। बट वेल, यू नो, दे कन्वे समथिंग वेरी प्रोफाउंड। हरे राम। सो स्टार्ट टेकिंग लाइफ एट इट्स फेस वैल्यू। गलत वलत कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक हो रहा है। भगवान ने अगर पृथ्वी को टेढ़ा खड़ा किया हुआ है तो वो टेढ़ी नहीं है, आपकी नजर को वो टेढ़ी दिखती है। आप थोड़ा सीधे हो जाइए तो शायद आपको सीधी दिखनी शुरू। साइंटिस्ट की नजर से वो टेढ़ी है, अगर है वो ही सीधी, अगर उसको हम सीधा कर देंगे, इलॉन मस्क कैन स्ट्रेटन इट, तो सारी खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। सो जैसी भी सृष्टि बनी है ये बहुत सुंदर है। सृष्टि इंक्लूड्स योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर नेबर्स, योर वर्क प्लेस, एवरीथिंग। आपकी बीमारियां, आपकी सेहत, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। जब ये आप ठीक समझना शुरू कर दोगे और जानना शुरू कर दोगे तो सचमुच ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज ऑल डिपेंड्स अपॉन योर दृष्टि। सुदर्शन हो जाएंगे जब, तो सब अच्छा लगेगा। हस्बैंड विस्की पीता है, पीने दो ना, उसको मस्ती करने दो थोड़ी सी। कोई चोर चोरी कर रहा है, कोई बात नहीं, उसने भी तो पेट भरना है, उसने प्रोफेशन बना लिया अपना, तो व्हाई नॉट। आप थोड़ा पुलिसमैन हो, जब पुलिस पकड़ लेगी तो यू शुड फील अ लिटिल कंपैशनेट टुवर्ड्स हिम कि बेचारा पकड़ा गया, क्या किया जा सकता है। ठीक। अब पुलिस तो पकड़ेगी, पुलिस का भी तो प्रोफेशन है। चोर सिपाही तो गेम हम खेलते ही हैं। सो व्हाई नॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग गेम। देखते हैं कब तक खेलते हैं एक दूसरे से। कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा और कभी फिर दूर छूट के भाग जाएगा, जेल तोड़ के भाग जाएगा। इट्स ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
तो हरे कृष्णा, टेल यू, बड़ा सुंदर है सब कुछ। खोजत खोजत द्वारे आया, वो द्वारा क्या है, वो 10वां द्वार क्या है? वो हृदय है। हृदय ही तो सोया हुआ है ना। हृदय गुहा बोलते हैं। हृदय गुहा। हृदय एक गुफा है, एक गुहा है, एक गर्ताकार देश है, कमल है, फूल है। हृदय खिल जाता है। हृदय संयमात चित्त संवित, योग दर्शन बोलेगा। जब आपको अपने हृदय के दर्शन हो जाएंगे तो आप फूल के समान खिल जाएंगे। क्यों बुझे हुए हैं? क्योंकि अभी आपके हृदय के दर्शन नहीं। जब हृदय के दर्शन होंगे तो साथ ही साथ भगवान के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि वो तो रहता ही हृदय में है। आप ही ने हृदय को बंद करके रखा हुआ है। क्यों बंद किया है? क्योंकि सबने बोला डू नॉट टेक पीपल एट देयर फेस वैल्यू। हर कदम फूक फूक के रखो, टेक केयर। मगर सभी के सभी सेंटेंसेस आपने मिस इंटरप्रेट किए हुए, isn't it? Because जब एज ए डॉक्टर, आई मीन अमूल्य, एज ए डॉक्टर यू वुड नो कि जब उल्टा आदमी पैदा होता है तो उसको हम सीधा बोलते हैं, और जब वो सीधा पैदा होता है तो हम उसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन है जी, सबको बता देते हैं खबरदार इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है। सो हम उल्टे को सीधा बोलते हैं, सीधे को उल्टा बोलते हैं, तो कौन बचाए? हरे राम, हम सब ही अमूल्य हैं। हम सब अमूल्य क्या होता है? जिसकी कोई प्राइस नहीं डाली जा सकती। क्यों नहीं डाली जा सकती? कोहिनूर की प्राइस नहीं डाली जा सकती क्या? हाँ, डाली जा सकती है। $1,000,000 कर लो, बिलियन कर लो, नहीं, अगर कोई बेचेगा ही नहीं तो कैसे डालोगे? अगर मैं बोलूं कि मेरा घर 100 करोड़ रुपए का है, तो ठीक है, कोई आ जाएगा 100 करोड़ खरीदने, मैं कहूंगा नहीं, 200 करोड़ का। मैंने बेचना ही नहीं है तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जो चीज आपने बेच ही नहीं सकते और बेचनी ही नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं डाली जा सकती, तो वो अमूल्य है। हम सब बिकाऊ नहीं है। हमको कोई चीज नहीं अट्रैक्ट कर सकती, कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती। हमको केवल अपने हृदय के दर्शन चाहिए, अपने ही हृदय के। और गुरु के बिना हृदय खुलता नहीं है। जो चीज आपके पास पहले ही है, हृदय आपके पास है, मगर बिना गुरु दर्शन के आपका हृदय नहीं खुल सकता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो उस गुरु का नाम है कृष्णा। उस गुरु का नाम है वाहिगुरु। उसका नाम है अल्लाह। जब तक अल्लाह के दर्शन नहीं हुए तब तक आप बोलते रहिए अल्लाह अकबर, कोई फायदा नहीं। मोहम्मद रसूल अल्लाह, बिना मोहम्मद के, पैगंबर के, आपको अल्लाह के दर्शन नहीं हो सकते। सो एक ओंकार तो है सच, मगर गुरु के दर्शन के बिना एक ओंकार को रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे। हरे कृष्णा, वाहिगुरु। सोदत सोदत सोद तत् विचार्या, नाम बिना सुख नाही, सर पर हार्या। बहुत सोचा, बहुत गहराई से सोचा, गहन विचार किया। वो गहन विचार ही गहना बन गया, वही विभूति हो गया। है नो, बाबा के जो सत्य साई बाबा के जो अपनी पिक्चर्स हैं, बाबा के भक्तों के घर में, वो उनमें से विभूति निकलती रहती है।
ये नहीं पता कि फ्रॉड है कि सचमुच निकलती है, मगर निकलती रहती। वेल, आप कुछ भी मानिए, वैसे तो लगेगा, तो दिमाग से सोचोगे तो फ्रॉड ही होगा। वेल, इट्स ओके। सो किसी ने मेरे से भी पूछा कि आप तो बड़े भक्त हैं। मैं बोला, मैं कोई बड़ा बड़ा भक्त तो नहीं हूँ, बड़ा छोटा कौन होता है। बट वेल, तो क्या जानना क्या चाहते हैं? कहते हैं हम आपके घर में बाबा की फोटो से विभूति निकलती है। हरे कृष्ण। उनकी वाइफ भी साथ में ही बैठी थी। उन्होंने बोला कि इनको अच्छी तरह से देखिए ना आप। कहते मैं पूछ तो रहा हूँ डॉक्टर साहब से। तो कहते हैं आप इनको देखिए कि विभूति का ढेर नहीं लगते हैं अपने आप में। वो तो जरूर हो सकता है। विभूति क्या होती है? राख ही तो होती है। राख ही तो होती है। और विभूति गहना भी तो होती है। गहना। विभूति के मीनिंग है, पर्यायवाची हैं, आप खुद भी देख लीजिए। सो वेल, सोदत सोदत सोद तत् विचार्य। गहराई से जिंदगी को देखा, सोचा, समझा, तत्व को पकड़ा। नाम बिना सुख नाही, सर पर हारे। ये जो नाम अंदर आपके गूंजता है, जिसको किसी ने एक ओंकार बोल दिया, किसी ने आमीन बोल दिया, किसी ने एमन बोल दिया, किसी ने ओम बोल दिया। निरंकार है जो, वही सच है। वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। और नाम बिना सुख नाही। नाम के बिना किसी को सुख नहीं मिल सकता। जो कुछ भी मर्जी पालो, आपकी बात नहीं बन सकती। नाम बिना सुख ना ही। सर पर मतलब निश्चय ही, डेफिनेटली आपने ये जिंदगी हार दी। जिंदगी की बाजी हार दी अगर आपको नाम नहीं मिला, निरंकार सत्य ओमकार नहीं मिला। और वो मिलेगा तो सिर्फ गुरु से ही। और गुरु से कैसे मिलेगा? टेक हिम एट हिज फेस वैल्यू। उसको इस पे शक मत करो। तो जो बोल रहा है आपके भले के लिए ही बोल रहा है। जो है वो आपके भले के लिए ही है। आपके नुकसान उसको आपका नुकसान वो सोच भी नहीं सकता। उसको कुछ नहीं किसी से चाहिए। बस आपका फायदा चाहिए, आपका भला चाहिए। उसको और कुछ नहीं चाहिए किसी से। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसको सब कुछ तो मिल गया। उसने कौन से आश्रम बनाने? उसको क्या चाहिए? उसको खाने पीने के लिए भी सब कुछ है, घर परिवार भी है, उसको कुछ नहीं चाहिए। हरे राम। वो पूर्णमसी है। वो पूर्णमासी है। हरे कृष्णा। आपके अपने हृदय के दर्शन, हृदय गुहा के दर्शन, जो कि एक अंधा कुआं है, वो धौला कुआं बन जाएगा। वही अंधा कुआं धौला कुआं बन जाएगा। हरे कृष्णा। It's a dark well. It will get lighted. It will be enlightened. It will be delighted. इसकी बात बन जाएगी। अपने ही हृदय के दर्शन हम सबको चाहिए। कोई भी एज क्यों ना हो, कोई भी जेंडर क्यों ना हो, कोई भी रिचेस या पॉवर्टी क्यों ना हो, कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, कैसा भी फीचर्स या शक्ल क्यों ना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। It is just that you are born as a human and you are amulya. You are priceless. Nobody can value you enough. Hare Ram. Vaheguru. Hare Krishna.